Hello friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. Another video on MCA updates 2021. Again, this notification came on 1st February 2021 on Companies Incorporation Second Amendment Rules 2021. To know what all is in the rules, please watch the video till the end and subscribe to my channel if you've not done it yet for all the updates on MCA's website or CACS or CMA's website. Before proceeding to the amendments, I'll be telling you some highlights about the amendment. So INC 6 is substituted and E-form INC 5 is omitted. MCA amends one-person companies rules, Wide Companies Incorporation Second Amendment Rules 2021. And MCA amends Rule 6 related to one-person company to convert itself into public company or a private company in certain cases, and Rule 7 related to conversion of private company into one-person company, Wide Companies Incorporation Second Amendment Rules 2021. So these are the highlights, or I would say the main points of the amendments that has been came up regarding the Companies Incorporation Second Amendment Rules 2021. Starting with the notification on amendment, this came up on the MCA's website on 1st February 2021, as it suggests that the rules may be called as the Companies Incorporation Second Amendment Rules 2021, and they shall come into force on first day of April 2021. So the enforcement of these rules have been pretty clear that they will come into force on 1st April 2021. So पहली amendment that starts from Companies and Corporation Rules 2014, Rule 3 में Sub Rule 1 में words mentioned है and resident in India. उनकी जगह पे now new words that are being substituted वो हैं whether resident in India or otherwise. तो मतलब जो restriction था कि वो resident in India ही होना चाहिए वो हटा दिया गया और otherwise लगा दिया. And an explanation 2, 182 days दिए थे, अब उनकी जगह पे 120 डेज है एंड सब रूल 7 जो है वो कर दिया गया है ओमिट. नाउ आई विल बी टेलिंग यू प्रॉपरली कि रूल्स में ये कहाँ पे कैसे कैसे चेंज हुआ है. So in Companies Incorporation Rules 2014, the Rule 3 was regarding the one-person company. तो यहाँ पे सब रूल 1 में पहले लिखा होता था that only a natural person who's an Indian citizen and resident in India. So they need to have these two and when it comes and they have to fulfill these two things, that Indian citizen and resident in India. Now what is the amendment? From the word and resident in India, that is substituted with the words whether resident in India or otherwise. राइट. सो इंडियन सिटीजन होना इम्पॉर्टेंट है. अब वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज वो जो चीज़ है वहाँ पे रिलैक्सेशन उन्होंने दे दी है, जो पहले रिस्ट्रिक्टेड था कि वो रेजिडेंट इन इंडिया ही होना चाहिए. राइट. इट विल डेफिनेटली वास्टन द स्कोप ऑफ ओपीसी, क्योंकि अब उन्होंने बोल दिया इंडियन सिटीजन वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी शैल बी अ नॉमिनी for the sole member of a one-person company. Further moving on to the explanation, वहाँ पे लिखा था कि resident in India means a person who has stayed in India for a period of not less than 182 days during the immediately preceding one calendar year. So in where it's written 182 days, now they are substituted with the words 120 days. तो जहाँ पे रेजिडेंट इन इंडिया को डिफाइन किया था कि वो जो इमीडिएटली प्रिसीडिंग वन कैलेंडर ईयर में 182 डेज के लिए रहा है इंडिया में, ऑफ नॉट लेस दैन, मतलब 182 डेज या उससे ज़्यादा ही रहा है. अब उनकी जगह पे डेज को कम करके कर दिया गया है 120 डेज. राइट. तो 120 डेज या उससे ज़्यादा दिन रहा है तो उसे हम रेजिडेंट इन इंडिया मान लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल, फॉर द पर्पस ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस रूल ऑफ द वर्ड्स रेजिडेंट इन इंडिया. फिर सब रूल 7 जो है, जो कहता था कि नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलंटरीली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी एक्सेप्ट थ्रेशोल्ड लिमिट is increased beyond 50 lakh rupees or its average annual turnover. तो जो भी है ये सारा कुछ जो है वो कर दिया गया है omit. राइट. ये जो सब रूल है पूरा का पूरा ही omit हो गया है. मूविंग फर्दर इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ रूल 6. तो रूल 6 जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया है
विद द अब जो नया रूल 6 है वो है कन्वर्जन ऑफ 1 पर्सन कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी। तो अगर कोई भी 1 पर्सन कंपनी या पब्लिक कंपनी बनना चाहती है या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है तो क्या क्या करना पड़ेगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, द 1 पर्सन कंपनी शैल ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन in accordance with section 122 subsection 3 to give effect to the conversion। अभी सबसे पहले तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स जो है एमओए और एओए जो है वो करना पड़ता है ऑल्टर, ठीक है, दैट टू अकॉर्डिंग टू सेक्शन 122 सबसेक्शन 3। सेक्शन 122 है एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर टू ओपीसी, मतलब 1 पर्सन कंपनी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें सब रूल 3 में बताया है कि रेजोल्यूशंस जो भी बिजनेस ट्रांजैक्ट हो रहा है उसका रेजोल्यूशन कैसे पास करना है, कौन कौन पास करेगा, किसे किसे कम्युनिकेट करना है, तो उसके रिलेटेड है। तो उसके इन अकॉर्डेंस टू दैट सेक्शन जो मेमोरेंडम है और जो आर्टिकल्स है सबसे पहले तो उसको ऑल्टर किया जाएगा। सेकेंडली, a 1 person company may be converted into a private or a public company other than a company registered under section 8 of the act, ठीक है। सो अदर दैन अ कंपनी उसमें वो नहीं हो पाएगी, बट अदर देन दैट 1 पर्सन कंपनी प्राइवेट कंपनी में भी कन्वर्ट हो सकती है, पब्लिक कंपनी में भी कन्वर्ट हो सकती है। उसके लिए उसको अपने मेंबर्स जितने भी रिक्वायर्ड हैं, 2 रिक्वायर्ड हैं या 7 रिक्वायर्ड है एज पर कि वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रही है या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। सेम गोज विद द डायरेक्टर्स, 2 रिक्वायर्ड है या 3 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है, जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है एज पर प्राइवेट या पब्लिक, तो वो जो है उनको मीटअप करनी पड़ेगी। एंड मेंटेनिंग द मिनिमम पेड अप कैपिटल, तो जितनी भी प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी की जितनी भी मिनिमम पेड अप कैपिटल है, पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी की जितनी भी मिनिमम कैपिटल है, वो सब कुछ आपको जो है करना पड़ेगा मेंटेन। तभी आप एक प्रॉपर प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी बन पाओगे, जब आप उसके नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड मिनिमम पेड अप कैपिटल को मीटअप करोगे। कंपनी को जो कन्वर्जन की एप्लीकेशन फाइल करनी है वो करनी है ई फॉर्म नंबर INC 6 में। ये नया फॉर्म है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू लेटर कि इसमें क्या क्या है। फीस भर के इस फॉर्म को जो है जितनी भी फीस प्रिस्क्राइब्ड है वो भर के इस फॉर्म को फिल करना है, सबमिट करना है। कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच करने हैं कन्वर्जन के टाइम पे, ऑल्टर्ड एमओए एओए जो मैंने पहले बताया, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, किस रेजोल्यूशन से आपने इसको पास किया, लिस्ट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स एंड इट्स लिस्ट ऑफ प्रपोज मेंबर्स एंड इट्स डायरेक्टर्स अलोंग विद कंसेंट, ठीक है, कंसेंट के साथ उनकी दोनों की लिस्ट प्रोवाइड करनी है कि मेंबर्स कितने, डायरेक्टर्स कितने, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट। तो ये सारी अटैचमेंट्स करनी है, फीस जितनी रिक्वायर्ड है भरनी है, और ई फॉर्म नंबर INC 6 जो है वो फाइल करना है for the conversion of OPC into a private or a public company. On being satisfied that the requirements stated herein have been complied with, तो registrar जो है वो approve कर देगा फॉर्म और सर्टिफिकेट इशू कर देगा। मूविंग फर्दर, जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो रूल 7 में हुई है, जिसमें रूल 7 के सब रूल 1 में और सब रूल 4 इन क्लॉज 1 में जहाँ पे लिखा है ना कि पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 lakhs और लेस और एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड इज 2 crores और लेस, दोनों में ये चीज़ें इसको ऑमिट कर दिया है। ये जो रिस्ट्रिक्शन है इसको ऑमिट कर दिया गया। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। और एनेक्चर में INC जो 5 है वो ऑमिट हो चुका है, INC 6 जो है उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट हुआ है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि उसमें क्या क्या है। The interpretation of the amendment is that it will directly benefit the startups and innovators in the country. It's very beneficial for the startups or for the innovators of the company, as it, especially for the e-commerce platforms, people who are supplying, the products or services on e-commerce platforms, and in order to bring in more unincorporated business into organized corporate sector, right? The incorporation of OPCs, they are actually incentivized by amending the rules to grow without any restrictions on paid up capital and turnover. So basically they have removed the restriction, allowing their conversion into any other type of company at any time. Right, so it's very, very beneficial that they can the conversion is allowable into any other type of company and even at any time, and the restriction is also removed regarding the thresholds that were provided on the paid up capital and the turnover.
And the OPC, now the Indian citizen residency limit has also been like reduced from 182 days to 120 days, and now they are also allowing the NRIs to incorporate OPCs in India. So it's a vast step, and it's good for the economy of the country as well. So as I told you that e-form number INC5 is omitted. At that place, this e-form number INC6 is substituted. As you can see, the name of the form is one person company and private company application for conversion. तो सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो रेड मार्क्स हैं वो मैंडेटरी हैं, आपको फाइल को सिलेक्ट करने ही करने हैं. सो एप्लीकेशन फॉर तीनों में से कौन सी क्या करना है आपको? ओपीसी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है, ओपीसी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है, या प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट करना है. इसमें से यू हैव टू सिलेक्ट. फिर आपको सिन ऑफ द कंपनी डालना है एंड यू कैन प्रीफिल. प्रीफिल करने से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप आ जाती हैं, राइट, बिकॉज ये रेड मार्क्ड है, तो आपको ये करके प्रीफिल करना है. प्रीफिल एक और इट्स लाइक एन ऑप्शन दैट यू क्लिक ऑन इट, एंड फिर आधी से ज़्यादा चीज़ें वो अपने आप जो भी रिलेटेड टू सिन होता है वो आ जाता है. मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट मैंडेटरीली फिल्ड field is name of the company at the time of the incorporation to be displayed in the certificate. तो क्या होगा कंपनी का नाम at the time of incorporation जो कि सर्टिफिकेट पे आएगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है. मूविंग टू पार्ट ए, तो सबसे पहले अब इस पेज पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारी ही फील्ड्स रेड एस्ट्रिक मार्क्ड है, तो आपको ऑलमोस्ट सारी ही फिल करनी है. जैसे कि एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनी आफ्टर एडिशन क्या है, मतलब नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल बी मिनिमम. अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हो तो मिनिमम 2 होने चाहिए, और 3 इन केस ऑफ, सॉरी आई थिंक एट बोथ ऑफ द प्लेसेस इट्स मिस प्रिंटेड, प्राइवेट ही लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है फॉर्म में. बट अदर दैन दैट बेसिकली आपको एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अब बताने हैं कि एडिशन करने के बाद आपके कितने डायरेक्टर्स हो गए हैं, राइट. एग्जिस्टिंग अभी कितने डायरेक्टर्स हैं. पर्टिकुलर्स ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, SRN क्या है ऑफ फॉर्म MGT 14, डेट ऑफ फाइलिंग MGT 14, डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ऑथराइज कैपिटल लाइक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, नॉमिनल अमाउंट एंड टोटल अमाउंट, ये सब कुछ आपको भरना है. देन मूविंग टू पेड अप कैपिटल कितनी है कंपनी की, फिर नीचे उसकी बाइफर्केशन है. नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, मैक्सिमम नंबर कितने हैं, एक्सक्लूडिंग प्रपोज्ड कितने हैं, देन नंबर ऑफ मेंबर्स एंड एक्सक्लूडिंग प्रपोज्ड एम्प्लॉयज़ कितने हैं. ये सारी चीज़ें जो है आपको फिल करनी है. पार्ट बी जो है उसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है रिगार्डिंग द पर्सन जो कि सोल मेंबर बन जाएगा वन पर्सन कंपनी का सब्सिक्वेंट अपॉन कन्वर्जन के बाद कौन सा सोल मेंबर बन जाएगा. सो उसका डिन फिल करना है, पैन, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, फैमिली नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम, एनी वन ऑफ इट. मूविंग फर्दर उसी की नॉर्मल जो डिस्क्रिप्शंस हैं लाइक जेंडर, नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, वो सारी चीज़ें फिल करनी. उसी की डिटेल्स आगे चलती जा रही हैं जो आपको फिल करनी है. अब ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स फिल करने के बाद ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस बताना पड़ेगा. इफ़ ड्यूरेशन ऑफ स्टे इज़ लेस दैन 1 year देन एड्रेस ऑफ द प्रीवियस रेजिडेंस, पहले कहाँ थे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. लाइक वैल्यूज़, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड दिखा सकते हो आप, पासपोर्ट दिखा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर, ये सब देना, इनमें से कुछ दिखा सकते हो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए. देन मूविंग फॉरवर्ड टू रेजिडेंशियल प्रूफ देना पड़ेगा. उसके लिए आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो, या इलेक्ट्रिसिटी बिल, या टेलीफोन बिल, या मोबाइल बिल. देन 9th पॉइंट है नॉमिनेशन. इसमें नॉमिनेट करना पड़ेगा उससे, that I, the member of so and so, do hereby nominate who shall become the member of the company in the event of my death or incapacity of the contract. So I declare that the nominee is eligible for nomination. तो उसको खुद ही nominee भी decide करना पड़ेगा कि मेरे बाद कौन सा जो जो भी बंदा है वो member बनेगा कंपनी का in the event of my death या incapacity to contract. देन आफ्टर दैट डिक्लेरेशन नॉमिनी से रिलेटेड सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, क्योंकि फिर वही सोल मेंबर बन जाएगा, राइट. सब्सिक्वेंट अपॉन कन्वर्जन, दिन, पैन, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, फादर्स नेम, जेंडर. फर्दर यू हैव टू फिल द डिटेल्स, सेम वही जो इससे पहले फिल की थी. अब यहाँ पे नॉमिनी की फिल करनी है, वहाँ पे मेंबर की फिल की थी, यहाँ पे नॉमिनी की सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी.
Moving further to the phone numbers, mobile numbers, email IDs, addresses. वही डिटेल्स आगे चलेंगी एंड देन देयर इज द ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट द प्रेजेंट एड्रेस इफ द ड्यूरेशन इज लेस देन 1 year what was the address of the previous residence. Then the nominee will have to produce his proof of identity as well as the residential proofs. वो उन्होंने दिए हैं कि कौन कौन से proofs हैं जो आप दिखा सकते हो. नाउ कम्स द अटैचमेंट्स. जो रेड एस्ट्रिक मार्क है वो मैंडेटरी अटैचमेंट्स हैं जो करनी ही करनी है. बाकी और भी दे रखी हैं अगर आप करना चाहते हो तो, लाइक ऑल्टर्ड MOA, ऑल्टर्ड AOA, कॉपी ऑफ ड्यूली अटेस्टेड लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग गिविंग ऑफ नोटिस. Then copy of minutes, list of directors, list of members, copy of NOC of every creditor with the application for conversion, consent of the nominee, copy of PAN card, proof of identity, residential proof and optional attachments if any, तो वो भी कर सकते हैं. Then coming to the last part of the form, that means the declaration. Declaration देनी पड़ेगी by anybody like director, manager, company secretary, CEO, जो भी इसे digitally sign कर रहा है form. यहाँ पे designation select करके he will have to declare कि जो भी stated है form में attachments हैं वो true है, correct है, complete है. राइट जो अगर NOC रिसीव किया है मेंबर्स से एज द केस में भी, और जितनी भी अटैचमेंट्स हैं वो सारी करेक्ट हैं, कंप्लीट हैं, एलिजिबली अटैच्ड हैं फॉर्म के साथ. यहाँ पे होंगे डिजिटल सिग्नेचर. सो डेजिग्नेशन बताना पड़ेगा, DSC बॉक्स में सिग्नेचर लग जाएंगे. डेन ऑफ द डायरेक्टर, डेन और पैन अगर मैनेजर है, CEO है, CFO है, और मेंबरशिप नंबर इन केस ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी. देन मेंबर इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ OPC तो उसका भी डिजिटल सिग्नेचर लगेगा. उसका पैन या डेन जो भी अवेलेबल है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा. Then the form is duly filed and now you can check form, and here the form is completed. Hope you found the video informative. Do subscribe to my channel and follow me on Instagram, Twitter and Pinterest as well.